ہوئے جب چلے بات زمانے کی تو کم بولتے ہیں، حرف جب آئے رسالت پہ تو ہم بولتے ہیں۔ میری اوقات ہی کیا زین کوئی بات کروں، ارے ان کے ہاتھوں پہ تو پتھر کے صنم بولتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ تو پتھر کے صنم بولتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں جناب محترم عزت مآب ہماری جد ہماری جان جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد حسنات احمد چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ ایک نعرہ ہاتھ دونوں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تلہ کے نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت جناب محترم عزت مآب صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا محمد حسنات احمد چشتی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی۔ تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فرمان ہے کہ پانی اتنی جلدی اگ نو ٹھنڈا نہیں کرتا جتنی جلدی درود آدمی دے گناہاں نو ختم کر دیندا ہے۔ درود پڑھنا حکم خداوندی ہے، اور اہل سنت و جماعت دے ہاں درود کسے نو ساڑن واسطے نہیں پڑھیا جاندا بلکہ کلیجہ ٹھارن واسطے پڑھیا جاندا ہے۔ درود پڑھن دے بہت سارے مقاصد نے۔ ایک مقصد اے بھی ہے کہ شہد بھی زبان نو اتنا میٹھا نہیں کردا جتنا محمد نام دیاں میماں میٹھا کر دیندیاں نے۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ اس وقت ہر طرف ایک بڑی تلخی دا ماحول ہے، تو کیوں نہ یار دا نام لے کے اپنا منہ ہی میٹھا کر لئیے۔ با آواز بلند ذرا درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی۔ زینت محفل، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نو اج دی محفل پاک کہ جس نو نور کا سما دا عنوان دتا گیا ہے، اس دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے انتہائی کرم فرما بھائی جناب محترم محمد سبتین صاحب پنجاب سون والے، آپ نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ مدنی گروپ دے اراکین اور مسجد بلال دے نمازی اور کارلا سٹیٹ دے غیور سنی مسلمان اور حضور دے اشاق سالانہ محفل پاک دا انعقاد فرماندے نے، اور خواہش ہے کہ تو بھی حاضر ہو۔ میرے کریم رب نے کرم فرمایا اور وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ انتہائی شفقت فرمان والی شخصیت، محسن آل سنت، مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد عزیز سلطان صاحب، خطیب مرکزی جامعہ مسجد کالرا، دیگر علماء کرام، حفاظ تشریف فرمانے اور آل سنت دی محافل دے اندر نقابہ وچ ایک اچھا اور سلجھیا ہویا نام جناب زین بادشاہ صاحب آپ نے بڑے اچھے انداز دے نال نقابت اور نظامت دے فرائض سر انجام دیتے۔ آپ کافی دیر تو تشریف فرما ہو، میں نے چند ایک باتاں کرنیاں نے۔
दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी जुबान ते कलिमतुल हक नू जारी फरमाए। मदनी ग्रुप दे तमाम अराकीन मैं इन्हां नू मुबारकबाद पेश करदा है इस मुश्किल दौर दे अंदर कि जदों घरां दे खर्चे भी मुश्किल हो गए, मामलात भी मुश्किल हो गए, मैंने ऐसे मजदूर और गरीब तबका दे लोग देखे ने कि जो अपनी पसंदीदा डिशां छोड़ के तो थोड़ा जिहा पैसा बचा के रखते ने, क्योंकि साल बाद मदनी आका दा मीलाद करना है। तो अल्लाह ताला इन्हां नू बरकत अता फरमाए और जितने भी मुआमिनीन ने अल्लाह उन्हां दे माल जान इज्जत और आबरू विच बरकतां और रहमतां अता फरमाए। उस दे नाल मैं एक अर्ज करना चाहांगा, महाफल जिस जगह ते भी मनाइयां जांदियां ने तमाम अहबाब, क्योंकि अजकल तो वीडियो के जरिए पैगाम हर जगह ते पहुंच रहा होंदा है, कोशिश करो कि अपनी महाफल नू बामकसद करो और मुख्तसर करो। एक अपनी महाफल नू बामकसद करो और दूसरा मुख्तसर करो। एक तिलावत, एक या दो नाता, एक खिताब। महफल जितनी मुख्तसर होवेगी इतना लोगों को समझ आएगा। अगर 2-3 बजे तक महफल जाएगी तो फिर अद्धे तो ज्यादा लोग सो जाएंगे, लेकिन महफल का फायदा तो उदों होवेगा जदों महफल तो बाद ना फजर दे वक्त मस्जिद दे अंदर नमाजी दसन अज तो यार दा जिक्र सुने, अज ही तो सजदे दा मजा आ रहा है। तो जिस महफल तो बाद फजर दे नमाजी कट्टे नजर आना, उस महफल का फायदा नहीं होता। फायदा उस महफल का होता है जिस महफल तो बाद लोग थोड़ी देर सो के घर वालियां नू कहन मैनू अद्धे घंटे बाद जगा देविओ, अज हुजूर दा जिक्र सुने, अज तहज्जुद दे सजदे भी ना कर लईए ताकि पता चले कि असां ने जिक्र मुस्तफा सुनिया है। साडे हां जदों भी कोई इस्लाह दी नीयत नाल बात करदा है तो बहुत सारे लोग फिर आके कहते हैं जनाब मौलवी साहब तो तुहाडे खिलाफ। मैं पहले अर्ज किया है कि मैं एक इस्लाही पहलू आप हजरात के सामने रखना चाहता है। साडी महाफल इस वक्त तरबियत गाह नहीं रही, साडी महाफिल इस वक्त तरबियत गाह नहीं रही। गैर संजीदा लोगों के हथ भी साडियां महफिलां चलियां गई ने। बड़ी माजरत के नाल एक बात मैं अर्ज कर रहा, जिस तरह इस वक्त गद्दियां भी गैर संजीदा लोगों के हथ विच ने, मुल्क भी गैर संजीदा लोगों के हथ विच है, और खिताबत की कुर्सी भी गैर संजीदा लोगों के हथ विच है। हालात ऐसे हो चुके ने कि कुफर अपनी चाल जो चली है उसने उस विच कामयाब हो गया है और असी फिरके बन के लड़ने या पे अल्लाह तौबा, नफरत दी अग सड़ने या पे अल्लाह तौबा, एक दूजे ते कुफर दे फतवे लावन लई इल्म किताबां पढ़ने या पे अल्लाह तौबा। हुण ते जिस दिन कोई अल्लामा साहब टेबल ते 4 किताबां रख लैन ना तो दिल धक धक करन लग पैंदा है, अज कोई सुन्नीयत चों निकलन लगे। तो साडी महाफिल गैर संजीदा हो गई ने और इस अंदाज दे हालात हो गए ने कि साडी महाफिल तो बाद एक दूजे दे खिलाफ दिल विच बुग़ज़ आ रहे है। साडी महाफिल विच मियारी जुबान नहीं रही, बाजारी जुबान इस्तेमाल हो रही है। तो अपनी महाफिल नू संजीदा, मैं एक बात अर्ज कर दिया, चाहे मदनी ग्रुप या कोई और भी महफिल घर विच कराए, मस्जिद विच कराए या बाजार विच कराए, सिर्फ एक बात है, हाथ जोड़ के इस्लाम दा गुलाम और नौकर होने की वजह तो मेरे जैन भाई ने मेरा ऐलान करदियां वकारे आले सुन्नत कह दिता है। भाई साडा वकार आले सुन्नत दी वजह तो है, आले सुन्नत दा वकार साडी वजह तो नहीं। आले सुन्नत दा वकार बड़े खुशकिस्मत लोग होंदे ने, वो कमरुद्दीन सियालवी जिहा बंदा होंदा है जेड़ा आले सुन्नत दा वकार बनदा है, वो मेहरे अली शाह जैसा बंदा होंदा है जेड़ा आले सुन्नत दा वकार बनदा है। आले सुन्नत दा वकार बनने वास्ते करम शाह जैसी मेहनत चाहिदी है, तो फिर बंदा आले सुन्नत दा वकार बनदा है। जदों मेहनत कीती जाए ना तो मिंबर ते अपने कदमां ते खलोता भी आले सुन्नत दा वकार होंदा है, ते व्हील चेयर ते बैठा भी आले सुन्नत दा वकार होंदा है।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। साड़ियां तो इज्जतां इस दीन दी वजह तो नहीं, नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है, ये मेरे ऐब पे पर्दे भी डाल रखता है, हजार मौत से टकरा के फिर भी जिंदा हूं, कोई तो है ना जो मेरा ख्याल रखता है। तो हजरात गिरामी आपने तवज्जो फरमानी है, जो बात मैं अर्ज करना चाहता है, मैं आज गुफ्तगू मेयारी करना चाहता है, बात कोई मेयारी आप हजरात तक पहुंचाना चाहता है, और कोशिश करांगा कि ज्यादा देर आप नू तंग न करा। बाकी जो मेरे तो बाद महफिल जारी रहेगी, दो सना खान हजरात बाद विच मौजूद ने, लेकिन मैं कोशिश करांगा और यह भी अर्ज करांगा कि अगर लंबी महफिल करनी होवे तो आलिम दीन नू या दीन दा मेरी तरह जो खादिम होवे उसनू थोड़ा जिहा जल्दी टाइम दे दिता, ताकि बेदार ज़हन दे नाल एक दीन दे खादिम दी बात सुन लीती जाए। हुण तो जरूरी है कि बात उदी सुनी जाए जो खादम होवे, भावें दीन दा खादम होवे, भावें हुसैन दा खादम होवे, हुण तो जरूरी है उस दी बात सुनी जाए। तो आपने तवज्जो फरमानी है जो बात मैं करना चाहता है। मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद दे जो अल्फाज तिलावत कीते, अल्लाह करीम फरमांदा है वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुहाडे चो एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो खैर दी तरफ बुलाए। वाह वाह वाह। एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो खैर दी तरफ बुलाए। साडे हां ना कुछ तुहाडी तरफों गलतियां ने और कुछ माइक ते आने वालियां दी तरफों कोताहियां ने, और खैर दा पैगाम नहीं पहुंच रहा। तुहाडी तरफों गलती यह है कि तुसी जितनी अहमियत मियां मुहम्मद दे कलाम नू दिती है ना, अगर इतनी अहमियत हजरत मुहम्मद दी हदीस नू देंदे तो अज मामला कुछ और होंदा। क्या बात। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, अगर कुरान दी आयात सुन के तुसी नोट निछावर करन दे आदि हो जांदे ना, तो नाथ खान ये भी कुरान दी आयतां याद करके आंदे, नकीब भी कुरान दी आयतां याद करके आंदे। अगर हदीस सुन के तुसी लोगां दी खिदमत कर दे तो फिर मेरे भाईओ सच दसो, साडा एक बाबा व्हील चेयर ते बह के हदीस पढ़दा सी, मैं कहना लखां सैफ मलूकां दे चस्के एक पासे, मुहम्मद दे कलाम दा मजा ही एक पासे हो जाया कर। तो असी कुरान नू अहमियत नहीं दे रहे, हदीस नू अहमियत नहीं दे रहे। साडे हां शामे कलंदर दे नाम ते लखां रुपया लुटाया जा रहा है, साडे हां कव्वाली दे नाम ते करोड़ां रुपया लुटाया जा रहा है। साडे हां वो जाहिल लोग के जिन्हां नू शरीयत दी अलफ बा दा नहीं पता, जदों वो चार सुरां याद करके आ जाते ने, और तुहानू ये भी नहीं पता बा जो नाथ खान कलाम पढ़ रहा है वो कलाम अहले सुन्नत दे मुअक्कफ दा है कि नहीं, वो कलाम महाफल विच पढ़े जान वाला है कि नहीं। कलाम नात है और मनकबत के तौर पर पढ़िया जा रहा है, कलाम हमद है और उन्होंने नात और मनकबत के तौर पर पढ़िया जा रहा है। न पढ़ने वाले नू पता है की हो रहा है, न सुनने वाले नू पता है की हो रहा है, क्योंकि तवज्जो ही नहीं, दीन दी समझ ही नहीं, दीन दा पता ही नहीं। लोग साल हा साल तो महाफल मना रहे ने, लेकिन वजू दे फराइज दा इल्म नहीं। लोग साल हा साल तो महाफल मना रहे ने, मैं कहना लोग पोतरिया वाले हो गए ने, मगर गुसल फर्ज दा तरीका नहीं पता। क्यों? तुसा चस्के लैन वास्ते महफिल मनाई, दीन सीखण वास्ते महफिल नहीं मनाई। साडे इस माहौल नू मुल्तानी सुरा ने तबाह कर दिता, साडे इस माहौल नू जाहिलां दी जहालत ने तबाह कर दिता। भाई जदों अवाम नू ये शऊर दिता जाएगा, जेड़ा महफिले नात सजाएगा वो सीधा जन्नत जाएगा, तो फिर अवाम तो समझेगी कि बस साल बाद एक तड़कड़ी जी महफिल करा दियो, न नमाजां दी लोड़, न कुरान दी लोड़, न शरीयत दी लोड़,
कुछ भी नहीं, बस एक महफिल होनी चाहिए। ना भाई ना, तेनू की पता है कि मुहम्मद दे कुरान दियां क्या लज्जतां ने, तेनू क्या पता है कि सजदे भी जाइए तो नमाज दियां क्या लज्जतां ने। मैनू एक बंदा कहंदा है ये नमाज विच जदों सजदा करदे हां लज्जत मिलदी है। मैं कहा तू खाली हुसैन दा नाम सुनिया, जरा करबला वल मुंह करके पूछ कि सजदे च कितनी लज्जत है। खंजर दी तार भी सजदे दी लज्जत नू खत्म नहीं कर सकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो अगर इत्थे मैं नारा लगावा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो हर बंदा ही जवाब देवेगा। तो क्या फजर दे वक्त ये सफा पुछणगियां नहीं ओ गुलाम किथे ने जिन्हां नूं मौत कबूल सी सजदा कबूल नहीं। मैं हाथ खड़े नहीं करांदा, लेकिन एक सोच देना चाहता है। मेरे तो पहले जो नात पढ़ रहे सन कह रहे सन कि असी अल्लाह दे घर विच बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। मैं हाथ खड़े नहीं करांदा, तुसां करने भी नहीं। जिन्हां दे पर्दे रब कज्जे होए ने, मेरी तुहाडी जुरत नहीं कि उन्हां दे पर्दे हटाइए, लेकिन हर बंदा अपने बंदे नूं अपने करतूत दा ते पता हुंदा है ना। साडे एक बजुर्ग ने, वो फरमांदे ने, किसे पुछिया जी शुगर दी दवाई लैंदे हो, हाई होंदी है नहीं? तो कहण लगे हाई होवे तो पता लग जांदा है, अपने करतूतां दा पता ना। तो बंदे नूं अपने करतूतां दा पता होंदा है, तो हथ खड़े नहीं कराने। लेकिन इशा दी नमाज तुहाडे कोल 7 बजे होंदी है, 7 बजे होंदी है ना, 7:10 ते होंदी है, ते 11:35 हो गए ने। 8, 9, 10, 11 यानी तकरीबन 4.5 घंटे हो गए ने तुहानू बैठे हैं। हुण जिन्हां इशा दी नमाज नहीं पढ़ी ते ना उन्हां जाके पढ़नी है, उस तो वड्डा कोई बेईमान है जिहड़ा 4.5 घंटे रब दे घर विच बह के भी उन्होंने सजदे दी तौफीक नहीं मिली। ये सारियां बातां सानू सोचनियां पैणगियां। ओ भाई तेरी महफिल दा नतीजा अच्छा लंगर नहीं, असी महफिल मनाण दा मकसद नहीं समझे। मुहर्रम शरीफ दे अंदर साडे यहां बहुत सारे एहतिमाम कीते जांदे ने। जिलहज दा आखिरी जुमा सी और मेरे कोल जुमे ते एक मुक्तदी ने सवाल पूछिया कि हजरत ये दसो कि मुहर्रम दे अंदर सबील लगाना जायज है? तो मैंने कहा कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल जायज है। इहदे ते दूसरी राय है ही नहीं। शरबत दी लगाओ, सादे पानी दी लगाओ, दूध दी लगाओ, बिल्कुल जायज है। लेकिन एक बात याद रखो, 10 दिन फद फद के ते पानी पिलाना खाली यही सबील नहीं। अगर 10 दिन फद फद के पानी पिलाया है और चंद दिनों बाद जमीन नू पानी लाने दी वारी सी ते अगले दा सिर पाड़िया ब तू पहले क्यों लाया, तो फिर उस सबील दा कोई फायदा नहीं। वाटर सप्लाई ते लड़ाई शुरू कर दी, पहले तू क्यों पिया भरदा है? उदों ते कहंदा सी पहले तू पानी पीते, अज पहले क्यों नहीं भरन देंदा? इसदा मतलब है तू सिर्फ मुसलमान 10 दिनों दा बनिया सी। तो मैं किया बिल्कुल जायज है। कहने लगा मौलवी जी मैं एक मन्नत मन्नी है कि इस दफा 10 दिन सबील और अच्छे शरबत दी लगानी है। सुबह फजर तो इशा तक यानी पूरा दिन सबील चलेगी और मैं पूरा साल इहदे वास्ते पैसा इकट्ठा किया। मैं कि अल्लाह तैनू इसदा अजर देवे। ते मैनू दसण दा की मतलब? कहंदा तुसी इमाम हो, मैं जुमा तुहाडे कोल पढ़दा, तो अगर तुसी यकम मुहर्रम नू सुबह फजर तो बाद मैं फोन करांगा तशरीफ ले आओ तो मैं खिदमत भी करांगा, तुसी दुआ करके एक गिलास शरबत दा पी जाओगे, इफ्तिताह हो जाएगा। करला वालियो मैंने उहदे कोलों पुछिया कि तुहाडे मां बाप भैन भाई रिश्तेदार इत्थे ने गिरां ने? कहण लगा जी सारे ही असी इत्थे आउंदे हां, वालदैन अल्लाह नू प्यारे हो गए ने, 5 असी भाईयां, एक साडी भैन है। तो मैं पूछिया कि आपस में ताल्लुकात? कहंदा जी भाई तो बिल्कुल असी इस तरह वा जिस तरह उंगलियां विच उंगलियां पाईए ना तो जुड़ियां होंदियां ने, ते भैन नाल साडा जीन मरण पा के। मैं पूछिया वजह? कहण लगा जी
ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। तो असा बड़ा समझाया बस तू लैके की करना है, तो उन्हें कहा नहीं मेरा हिस्सा रब रसूल रखे मैं लैना है। असा हिस्सा दे के आखिया तू अज तो बाद साडे वास्ते मर गई, तू साडा मुंह नहीं वेखना, असा तेरा नहीं वेखना। मौलवी जी सच पुछो हुण ते ओदी शक्ल भी भुल गई है, 10-12 साल हो गए ने कदी वेखिया ही नहीं। बच्चियां दियां शादियां कीतियां उन्होंने नहीं बुलाया, उहदे बच्चियां दी शादी हुई उस दावत भेजी भी असी नहीं गए। मैं कहा मेरे भाई ये 10 दिन जो सबील लगानी है ये कम अज कम 8-10 लाख रुपया इस ते खर्चा आएगा। जिकन तू पिया दसदा मैं पूरा दिन चले और शरबत भी ते चीनी भी ते बहुत सारे मामलात, कहंदे जी इतना ते आएगा। मैं कहा ये दस ये सबील लोगां नू विखानी है या रब कोलों मंजूर भी करानी है? कहंदा जी मंजूर होवे तो फिर गल बनेगी ना। मैं कहा फिर मैं तैनू तरीका दसदा और नाल सनद भी देना मंजूर होवेगी। कहन लगा जी इतने यकीन नाल कह रहे हो वो केड़ा तरीका है? मैं कहा यकम मुहर्रम नू जदों सबील बन गई ना तो मैनू फोन न करी, घरों नवा सोहना जिहा गिलास कढ़ के ना ते शरबत दा भर के ते भैनू दे घर चला और दरवाजे ते दस्तक दे के आखी भैणे मैं हुसैन दी सबील दा वास्ता ते मेल लैके आया, बुआ खोलना ते जरा है घुट भर के इफ्तिताह कर दे, नाले ना होण असी जींदियां दा मुंह वेखना, मरियां दे ते अगे कैदा हो गईयां सन, असां हुण जींदियां दा मुंह वेखना। तू मैनू वेख ले मैं तैनू वेखा, तू भैणे मैं भाईयां, हो सकदा मेरे लेजे तैनू अब्बा गल्लां करदा नजर आवे, तेरे अंदाज विच मैनू मां बोलदी नजर आवे। असी एक जगह ते मिल बैंदे हां। मैनू कहण लगा मौलवी जी मैं भैण कोलों इफ्तिताह क्यों करावां? मैं कहा नाम हुसैन दा लै रहे हैं, जालिमा तैनू पता नहीं मदीने तो करबला तक कोई एक मोड़ दस सकदा है जिथे ज़ैनब और हुसैन दी मुहब्बत दी बात ना होवे, जिथे ज़ैनब और हुसैन दे प्यार दा जिक्र ना होवे। जेड़ा हुसैन समझ जावे ओ भैणां दा हक नहीं मारदा, जेड़ा भैण दा हक मारे ओ बेईमान हुसैन नू समझ नहीं सके। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। यही वजह है कि असी मीलाद कर रहे हैं मगर मीलाद समझ नहीं रहे। क्या बात, क्या बात। भाई सानू मीलाद समझ आ जाता तो अज हर मां दुआ देंदी कि मेरा बेटा मुहम्मद दा मीलादी है, मेरे सामने उच्चा नहीं बोलता। अगर मीलाद समझ जाते तो अज भाई भाई तो जुदा ना होंदा। अगर मीलाद समझ जाते वो इंसान तो इंसान, अज साडे मुल्क दे परिंदे भी खुश होंदे असी उस बस्ती च रहिंदे हां जिथे मुहम्मद दे गुलाम रह रहे हैं। लोग कितना खर्चा करके तो मीलाद दी सबील मुहर्रम दी सबील लगांदे ने। सिर्फ 10 दिन, एक दिन, 4 दिन, अगर रोज पानी दा प्याला भर के मकान दी छत ते रख के उन्होंने सबीले मीलाद दा ना दे दियो ते परिंदे पीनगे, वो भी ते मेरे मुहम्मद दी उम्मती ने ना, तेरी मीलाद दी सबील चलती रहेगी। अगर रोज एक मुठ दाने आंदी, अगर दाने नहीं ते जेड़ा टुकर रोटी राती बचिया सी ना उन्हों ही चूरा करके विच थोड़ा जिहा पानी पा के नरम करके मकान दी छत ते रख के कह के रब्बा मैं ये मीलाद दा लंगर लगा दिता है अपनी मखलूक नूं भेज, जे चुंझ भर लवे कोई चिड़ी निमाणी कदों घटदा ए दरियावां दा पानी। तेरे घरों 4 परिंदे भी चुंझां भर गए, तेरे मीलाद दी सबील कामयाब हो जाएगी। तो असा ने मीलाद समझना है, असा ने हुजूर दा किरदार समझना है, असा नबी दी तालीम समझनी है। असी बोलियो तो पता चले आवारा नहीं बोल रहा, मुहम्मद दा गुलाम बोल रहा है। असी चलिए तो पता चले कोई किसी बाजारे हुसन दा दीवाना नहीं पिया चलदा, मुहम्मद अरबी दा मस्ताना पिया चलदा है। लेकिन असी अपनी तबीयत दे मुसलमान रह गए हैं। उलमा तशरीफ फरमाने मेरे को अक्सर बंदे आके कोई तावीज कोई दुआ या वैसे मुलाकात वास्ते आंदे ने ते अक्सर जान लगियां कहंदे ने मौलवी जी दुआ करियो अल्लाह मौत ईमान ते देवे। बहुत अच्छी दुआ है, करनी चाहिए, लेकिन जेड़ी गल मैं समझाना चाहना है कि हर बंदा कहंदा मौलवी जी दुआ करो मौत ईमान ते आवे। अच्छा मैं कर ला वाले बड़ा परेशान होना है, कदी कदी सोचना है कि हर बंदा ईमान ते मरना चाहता है, ईमान ते जीना क्यों नहीं चाहता? मैनू नहीं याद किसी आखिया होवे दुआ करो बस जीवीए भी ईमान ते। तुसां सिर्फ ईमान ते मरना है, दुनिया नू ईमान ते जी के किने विखाना है?
ਅਲਾਮਾ ਰਜ਼ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਦਾਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਤੇ ਵਿਕਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात चिश्ती साहब, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं कई बारी सोचिया बंदा ईमान ते जीना क्यों नहीं चाहता? वाह, खाली ईमान ते मरण दियां दुआवां होंदियां ने, ईमान ते जीण दी फिक्र नहीं होंदी। जदों सोचिया तो फिर ख्याल आया ईमान ते जीण वास्ते झूठ छड़ना पैंदा है और साडी कौम नहीं छड़ सकती। ईमान ते जीण वास्ते ना सब तो पहली शै जो तेरी झोली झोनी चाहिदी है ना, वो अबू बकर दी सदाकत है। दूजी चीज जो तेरी झोली झोनी चाहिदी है वो उमर दी अदालत है। तीसरी चीज तेरी झोली विच उस्मान दा हया होना चाहिए। चौथी चीज तेरी झोली विच अली दी तरह कुरान नाल प्यार होना चाहिए। और पंजवीं चीज हसन दी सुलह भी होनी चाहिए। और छठी चीज तू हुसैन दी तरह दलेर भी होना चाहिए। तो फिर ईमान ते जी सकता है। देखो असी ना कदी कदी यार सोचिया करो कि असी दीन वास्ते मुखलिस कितने हैं, असी दीन वास्ते मुखलिस कितने हैं। इखलास वाले बंदे नूं रब रसूल पसंद ही बड़ा करते हैं। साडे गुजरात के अंदर एक बहुत बड़े आलम दीन गुजरे ने, आहले सुन्नत जिन्हां दे एहसाना थले दबे ने, हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह तआला अलैह। मुफ्ती साहब अपने हालात जिंदगी बयान करदे हैं, अपनियां कुछ बातां बयान करदे हैं कि जगह ते लिखते ने। लाहौर के अंदर साढ़े बहुत बड़े आलम दीन ने, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल कसूरी आप हयात ने, और हुजूर दे वालदैन ते उन्होंने किताब लिखी ईमान दे मुतल्लक, हालात जिंदगी दे मुतल्लक। वालदैन ने उतर के ते इमारतें वेखते रहते ने। और पहली नजर हुजूर फरमाते ने जिदी पहली नजर काबे ते पवे ओदी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन असी वो पहली नजर कोई सोने दियां दुकानां पे वेखदा है। साडे मुहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े नातगो शायर सन। उन्होंने हसाने पाकिस्तान भी किया जाता सी। आप पहली दफा जदों उमरा करके वापस आए ना, तो उदों नए नए रोड सऊदीया विच मोटरवे बन रहे सन और प्लाजे बन रहे सन। तो किसी ने आखिया ज़हूरी साहब लोग ते बड़े होटलों ते बड़े रोडां दी जिक्र करते हैं, तुसां भी कोई रोड वेखे ने, कोई होटल वेखे ने? तो ज़हूरी साहब रो के कहते ने केड़े रोड ते केड़े होटल ते केड़ियां सोने दियां दुकानां, मक्के की फिजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। मैं उत्थे होटल वेखण नहीं गया सा, मैं मुहम्मद दा शहर वेखण गया सा, मैं मुस्तफा दियां गलियां वेखण गया सा। मैनू ये पलाजे नजर नहीं आ रहे सन, मैनू वो शहर पिया नजर आंदा सी जिथे मुस्तफा तलियां रखदे ने। रब फरमांदा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। तो मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, मैं जदों हज दा इरादा कीता तो नीयत की अहमद यार ये सफर मुश्किल है ते पता नहीं दोबारा मैनू जाना नसीब होवे ना होवे। ये जिंदगी का जेड़ा पहला हज का मौका मिल रहा है ना, मैं अपनी तरफों नहीं करता,
یہ میں حضور دی امی حضرت آمنہ دی طرفوں کردا ہوں. ایک نیت کر لئی کہ حج اپنی طرفوں نہیں کرنا, یہ اس ماں دی طرفوں کرنا ہے جس دی پاک جھولی وچ میرے مصطفیٰ نے لوریاں لئیاں نے. فرماندے نے پھر میں وہ حج کیتا, حج تو بعد قربانی کیتی, قربانی بھی مائی صاحبہ دے نام دی, حج بھی مائی صاحبہ دے نام دا. قربانی کر کے رات جدوں پہ گئی میں اپنے خیمے چ لیٹ گیا, اکھ لگی میرا مقدر جا گیا. مینوں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صدقے اللہ نے میرے تے کرم فرمایا. میں نے پردے دے اندر ایک خاتون دی زیارت کیتی جنہاں نے پردہ کیتا ہویا ہے, اور نبی پاک دا بازو انہاں نے اپنے ہاتھ وچ پکڑے ہے. اور مینوں کسے نے کہا آمد یار اٹھ کے کھڑا ہو جا, تینوں نہیں پتا مصطفیٰ دی ماں آمنہ اپنے بیٹے نو لے کے تیرے والا رہی ہیں. تو فرماندیاں نے میں خواب وچ احترامن کھڑا ہو گیا, سر جھکا لے, پردے وچ مائی صاحبہ تشریف لے آئیاں اور فرمایا آمد یار اے حج تو میری طرفوں کیتا ہے؟ میں عرض کیتا ہے جی اماں, خیال سی پتہ نہیں پھر آنا نصیب ہوئے نہ ہوئے, جیڑا ایک کراں نہ او تواڈی طرفوں کراں. ہو سکتا ہے میرے پھیرے قبول نہ ہون, جدوں تواڈی نسبت ہوئے گی تے رب ہر سفر قبول فرما لے گا. فرمایا اچھا اے دس قربانی بھی میری طرفوں دیتی ہے؟ میں عرض کیتی اماں جی جدوں حج تواڈی طرفوں کیتا ہے تو قربانی بھی تو تواڈی طرفوں ہی کرنی سی نا. اے سارا سفر, اے قربانی, اے سب کچھ تواڈی طرفوں کیتا ہے. تو مائی صاحبہ نے نا نبی پاک دا ہاتھ پکڑیا سی تے حضور نو قریب کر کے کیا آمد یار اے بیٹا میں تیرے تے اتنی راضی ہو گئی ہاں, میرا دل کردا ہے میں اپنا محمد نہ تینوں دے چھڑا. آپ فرماندے نے بس خواب تو بعد جدوں میری آنکھ کھلی نا تو میرا دل عشق رسول نال منور ہو چکا سی. پھر ساری زندگی مولانا گجرات دی زمین تے رہ کے کہندے رہے خاکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. خاکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. مر مٹ کے خوب لگی تھی مٹی میری ٹھکانے, گر ان کی راہ گزر پہ میرا مزار ہوتا. تو جو مخلص ہوندے نے نا انہاں دا انداز ہی الگ ہوتا ہے. تو آؤ او پیغام وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ خیر دی طرف تانوں بلایا جائے. تو میں چار چیزاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہے. اگر انہاں نو اپنا لو گے تو زندگی بہت سوکھی ہو جائے گی. پہلی چیز ہے اپنے رب نال اپنا تعلق مضبوط کرو. توحید اس عقیدے نو اپناؤ. بڑی معذرت دے نال میں ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے, بہت معذرت دے نال. اگر کسے دا دل دکھے تو میں پہلے معذرت کر لیں, لیکن اسی توحید کولو دور ہوندے جا رہے ہیں. اسی اتنے دور ہوندے جا رہے ہیں کہ سانو 2 نمبر جاہل بابیاں دے تویزاں تے یقین ہے مگر رب تے یقین نہیں رہا. ادھی وجہ کی ہے؟ ادھی ایک وجہ یہ ہے کہ اساں نے لوگاں نو اللہ دے نال تعلق تے بات کرنی ہی بہت کم ہو گئی ہے.
کتنے عرصے تو میلاد منا رہے ہو, کدی توحید کانفرنس بھی منائی ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی مسجد وچ توحید کانفرنس دے نام نال جلسہ رکھ دے وے نا, تو ادھے لوگ کہندے نہیں ادھر کیوں جانا ہے, وہ تے وہابی نہیں ہو گیا. او بھائی توحید وہابیاں دا ٹھیک ہے, توحید تو ہر ولی دا مضمون ہے, ہر صحابی دا مضمون ہے, ہر نبی دا مضمون ہے. یہی مضمون بیان کر کے تے معین الدین نے 90 لاکھ زباناں تے محمد دا کلمہ جاری کیتا سی. یہی مضمون بیان کر کے عبد القادر جیلانی نے مردے زندہ کیتے نے. او اسی مضمون نو بچان واسطے ہتھاں تے پتر بھی حسین ذبح کرایا ہے اور نیزے تے چڑھ کے قرآن بھی سنایا ہے. لیکن ساڈے ہاں اگر کوئی توحید تے گفتگو شروع کر دے وے تو لوگ کہنے لگے وہابی ہو گیا جی. بڑی معذرت دے نال میں نے پہلے عرض کیتا ہے, تانوں کم از کم سال وچ ایک جلسہ توحید کانفرنس دا کرنا چاہیے. اور یاد رکھو او توحید ہی نہیں جدے وچ ذکر رسالت نہ ہوگا, کیونکہ اسی بیان کریں گے تو لوگاں نو پتا چلے گا نا. کچھ لوگاں نے جدوں توحید بیان شروع کیتی, میں نام نہیں لیندا, لیکن اس مولوی دی تقریر اج بھی یوٹیوب فیس بک تے موجود ہے, جنہیں توحید بیان کردیاں کیا سی کہ آج کی تاریخ میں ہمارے لیے محمد کو ماننا بھی ضروری نہیں, بس اب اللہ جانے اور ہم جانے. اور پھر توحید بیان کی تھی, اللہ وہ ہے جس نے پہاڑ بنائے, اللہ وہ ہے جس نے درخت بنائے, اللہ وہ ہے جس نے گائیں بنائی, اللہ وہ ہے جس نے پرندے بنائے. بھائی سب کچھ اللہ نے پیدا کیتا ہے, پر جدوں رب دا تعارف کرانا ہے تو گاواں مجھا نال نہ کراؤ. توحید احمد رضا نے بیان کی تھی, اور کیا توحید انج بیان ہوے گی, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. جدوں رب دی پہچان کرائی جائے گی تو اس چہرے نال کرائی جائے گی جدے تے نظر پوے تے سامنے بین والا کہندا ہے واخسن من کلم ترکت تو ہے نہیں, واجمل من کلم تل دن نساء, خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اور 14 صدیاں بعد کوئی خواب وچ ویکھے تے پھر بھی کہندا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں مد پریاں. تو توحید بیان کر کے دسنا پوے گا. توحید اس وقت ہوے گی نہیں جب تک محمد دے ذریعے رب دی پہچان نہیں کرائی جائے. ساڈے ہاں بڑی معذرت دے نال یار حالات اتنے بگاڑ دیتے گئے کہ کوئی حضرت علی دا نا ذرا اچا لے لوے تے انہوں رافضی کہنے لگ پندے نے, کوئی حضرت ابو بکر دا ذکر کر دے وے تے انہوں خارجی کیا جاندا ہے, کوئی حضرت امیر معاویہ دی بات کرے تے انہوں ناسبی کیا جاندا ہے. اور لوگاں نے اپنے اپنے مضمون ونڈے ہوئے نے, 4 فٹ دیاں اپنیاں جناب تحریکاں تے اپنے انداز بنائے نے. جس طرح توحید بیان کردیاں کچھ لوگ پٹکے, اسی طرح کچھ نے آل رسول دی محبت دا دم بھریا اور پھر اپنی مرضی نال آل رسول نو منیا, تو نبی دیاں 4 دھیاں وچوں ایک نو منن لگ پے, 3 نو چھڑ دیتا. نبی دیاں بیویاں وچوں ایک دا احترام کیتا, باقی نو چھوڑ دیتا. نبی دے بیٹیاں دا ذکر چھوڑ دیتا. حضرت فاطمہ زہرا دے ایک بیٹے دا ذکر بہت اہتمام نال کیتا, دوجے دا چھوڑ دیتا جو بڑا سی. کربلا وچ سیدہ فاطمہ زہرا دیاں 2 بیٹیاں امام حسین نال سن, لیکن ایک دا تذکرہ کیتا, دوجی دا چھوڑ دیتا. علی دے 9 پتر کربلا وچ شہید ہوئے, 2 دا ذکر کیتا, 7 دا چھوڑ دیتا. اور پھر کیا کہ اسی آل بیت تے پیار کرنے والے ہیں. کیوں؟ اگر دوجی بیٹی ام کلثوم دا ذکر کریے تو پھر انہاں دے خامد نو مننا پیندا ہے. اگر علی دے باقی بیٹیاں دا کربلا بھی ذکر کریے تو پتہ لگدا ہے دشمناں دے ناواں تے پتراں دے نا نہیں رکھے جاندے, یاراں دے ناواں تے پتراں دے نا رکھے جاندے نے.
ਅਗਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਦੀਕਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਆਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਮੰਨੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਨਸਲੇ ਪਾਕ में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब कराना नूर का। इन्हां चीजां नूं सानू समझना पवेगा। तो एक है तौहीद। अपनी कौम नूं दसो कि औखे वेले मुसल्ला विछा के मंगो ते सही। वो कहंदा मैं अज भी देने वास्ते तैयार हां, वो कहंदा मैं अज भी कर्म करन वास्ते तैयार हां। लेकिन असी अल्लाह दा जिक्र ही भुला बैठे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। वरना इत्थे कितने बंदे बैठे ने, मैं हाथ खड़ा नहीं कराने, सोच देनी है, अवेयरनेस देनी है। कितने बंदे ने जो सिर्फ उहदे जिक्र दी लज्जत वास्ते घर बैठ के उहदा जिक्र करते हैं। जदों तौहीद नाल असी प्यार करांगे, जदों रब दा जिक्र करांगे तो फिर समझ आएगी अल्लाह अल्लाह करते करते हू नजर आया मुझे, और हू में जब मैं गुम हुआ फिर तू नजर आया मुझे। एक तो अपने रब ते यकीन करो, सानू यकीन नहीं रहा। जो यकीन करते ने ना, वो किसी ने किया सी है अल्लाह मुश्किल बड़ा घेर लिया है ते मैनू जग ते हसन जोगा कर दे, किधरे वसन जोगा कर दे। मैनू जग ते हसन जोगा कर दे, किधरे वसन जोगा कर दे। मेरा भी ते है कोई साइयां जग नू दसन जोगा कर दे। यकीन होना चाहिए भाई मेरा रब है ना, तू लुगा ते नहीं ना यार, तेरा रब है ना। तो जो अपने रब ते यकीन करते ने उन्हां दे बेड़े पार हो जाते हैं। एक दौर सी ना जदों बंदे तखत ते बहिंदे ने फिर फिरौन बन जाते हैं। एक दौर सी, और जेड़ा दुबई के अस्पतालों में अड्डियां रगड़ रगड़ के मरिया ना मौलवियां नाल टक्कर लैके, उहदा जदों दौर सी ना, ते जदों वो तखत ते बह के फिरौन बनया होया सी ते उन्हें कहा सी भाई मदरसियां ने दाने देने बंद कर दिओ, ऐ कम करना बंद कर दिओ। फिर बड़े बड़े जमींदारां ते पाबंदियां कि तुसां मदरसियां नूं उशर दे दाने नहीं देने। बेरा शरीफ दे अंदर लांगरी आके हुजूर पीर मुहम्मद करम शाह लजरी रहमतुल्लाह अलैह नूं अर्ज करदा है, हुजूर दाने ते खत्म हो गए, आटा खत्म हो गया, अज सुबह वास्ते मैं थोड़ा जिहा आटा रखिया, सुबह आएगी तो वह पकेगा, उस तो बाद लंगर जोगे ना आटा खत्म हो गया, दाने खत्म हो गए ने। तो पीर साहब मुस्कुराए, फरमाया जेड़ा आटा है ना उदी पका। हजरत वत की होवेगा? फरमाया वत रब जाने ते रब दे पिरौने जाने। वत रब जाने ते रब दे पिरौने जाने। असी ते कम पे करते हैं, सारा कुछ देना तो उन्हें आप है ना। असी कोई बादशाहां दे तवक्कल ते बैठे हैं, असी रब दे तवक्कल ते बैठे हाँ। और फिर देखा गया है बादशाहां दे दाने मुक गए, भेरे दा लंगर अज भी पिया चलता है। क्यों? जो उस ते भरोसा कर लेंदे ने, अल्लाह उन्होंने इज्जत ही इज्जत अता फरमाए। वाह वाह वाह। इत्थे जूंदे चौधरियां दा लंगर मुक जांदा है, लेकिन कबर विच लेटे दाता दा पिया चलदा है। क्यों? जिन्हां ओहदे ते तवक्कल कीता होया है ना, उन्हां दे मरे दा भी लंगर नहीं जे मुकन देंदे। दूसरी चीज है अपने रसूल नाल प्यार करो। और रसूल नाल प्यार किस तरह होवेगा? रसूल दी मन के। ओ भाई वो कैसा प्यार है? प्यार तो है पर मननी कोई नहीं। कैसा प्यार है? मैं आशिक तो हां पर मननी कोई नहीं। नारे जितनी मर्जी लवा लवो लेकिन नमाज नहीं पढ़नी दी। चंदा जितना मर्जी ले लवो लेकिन साडी जुबान तो झूठ नहीं मुक सकता। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह च किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह मैं दो गल्लां चाहना है, कोई जवाब दियो। फरमाया गल्लां ते दस की चाहना है? आका पहली गल है उम्र लंबी होवे, दूजी गल है रिज़्क ज्यादा होवे।
ਇੱਕ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। तो नबी पाक ने फरमाया रिश्तेदारां दे नाल सलूक चंगा कर लै, रब तेरी उम्र भी लंबी कर देवेगा, रिजक भी खुला कर देवेगा। लेकिन असी ते जनाजे विच भी नाराज रिश्तेदार नाल सलाम नहीं लेंदे। साडे एक बजुर्ग ने, वो अजे जिंदा ने, जेलम दे अंदर एक बजुर्ग ने, अजे हयात ने। वो कहते ने मेरे कोल फैसलाबाद तो एक बड़ा अमीर आदमी पहली दफा आया मेरा सुन के, और मेरे कोल बैठ के ना रो पिया। कहने लगा बाबा जी डॉक्टर जवाब दे दिता है कोई ऐसी बीमारी लग गई है, ते जायदाद इतनी, दौलत इतनी, मैं कई फैक्ट्रियां दा मालिक हां, सुनिया तुसी दुआ करदे हो तो अल्लाह करम करदा है, कोई तावीज कोई दुआ मैं बच जावां। आ फरमांदे ने मैं कहा कि कित्थों दा रहण वाला है? उन्हें दसिया जी हुण तो मैं फैसलाबाद होना है, लेकिन लाहौर तो परले पासे एक छोटा जिहा देहात है, उत्थे मैं जम्मिया सा। हुण ते कोई 20-25 साल हो गए ने मैं उधर गया ही नहीं। तो मैं पूछया बा उधर कोई है ही नहीं रिश्तेदार? कहंदा नहीं पूरा टब्बर उत्थे हुंदा है, खानदान बिरादरी उत्थे हुंदा है, चाचे मामे उन्हां दियां औलादां। मैं किया फिर 20-25 साल तो गया क्यों नहीं? तो कहने लगा जी मैं जरा अमीर हो गया, मेरिया फैक्ट्रियां हो गई, वो गरीब ने, हुण वो मेरे ना मियार दे नहीं, स्टेटस दे नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं जाना भी छड़ दिता, हुण वो मैनूं बुलांदे ही नहीं जद मैं जांदा ही नहीं। वो गरीब बहुते ने। कहंदे ने मैं कहा यार वैसे भी डॉक्टर तैनूं जवाब दे दिता है, तो एक गल कदी मेरी मन लै, हो सकता है रब तेरे ते करम कर देवे। उन्हें पूछिया जी दसो की? मैं कहा पहले वादा कर जो मैं कहांगा तू करेगा। कहन लगा जी करन वाली गल हुई तो मैं करांगा। मैं कहा मैं ये जी गल आखनी नहीं जिहड़ी करन वाली ना होवे। उन्हें कहा दसो? मैं कहा तू इंज कर, बैंक विचों ना चंगा जिहा पैसा कढवा लै। ये बड़ी पुरानी बात है, अज तो कोई 25-30 साल पहले की बात है। मैं उन्होंने आखिया बस चंगा जिहा पैसा बैंक विचों कढा लै ते अपने गिरां चला जा, पर अपनी गड्डी ते ना जावीं, बस ते जावीं, क्योंकि ना बाहर तेरी गड्डी खलोती होवे ते तेरे दिमाग विच तकब्बर ना होवे। ते ओ जिन्हां नूं 20-25 सालां तू नहीं ना मिलिया, जा उन्हां रिश्तेदारां कोल चला जा, उन्हां नूं जाके मिल, जफे पा। किसी दे घर अगर टॉयलेट नहीं बनी ना तो उन्होंने टॉयलेट बनवा दे, किसी का छत टुटा तो उन्होंने नवा छत पवा दे, किसी दे हां बिजली नहीं तो उन्होंने बिजली लवा दे, किसी कोल हल टुटे नहीं उन्होंने ट्रैक्टर लै दे। तेनू दौलत रब उंज दिती है, डॉक्टर उंज जवाब दे दिता है। तो इतनी दौलत का हिसाब औखा होगा अगर ना भी बचियों तो रब दे बंदियां कोल जाएगी ना, अपने रिश्तेदारां विच कोल मिल जाओ, वो इंज ही पता लगे तू भी बड़ा गरीब हो गया, जाके उन्हां विच रह ते उन्हां दियां दुआवां लै। वो जिस गिलास विच वो पानी पीन उसे गिलास भी तू पावी पीवी, और जिहड़ी दाल पकान वो ही तू खावी, उत्थे मुर्गियां दी फरमाइश ना करी। और जिवें वो रह रहे ना 1 महीना तू उत्थे इंज रह के आ, उन्हां दियां परेशानियां दूर कर। अगर तेरे किसी रिश्तेदार दी धी बुढ़ी पई होंदी है ना, उहदे कोल जहेज कोनी, ते जा उहनूं जहेज लैके दे और उहनूं शादी करके उहदे घर भेज दे। कहण लगे ने वो बंदा चला गया, वादा करके मैं करांगा। फरमाते ने अल्लाह दी कसम, महीने बाद जदों मेरे को आया ना, तो मिठाई का डब्बा भी लैके आया और मेरे वास्ते खिदमत का लिफाफा भी लैके आया। कहने लगा मौलवी जी तुसां जो गल मैनू दसी सी, मैं चला गया, पहले तो रिश्तेदार बड़े हैरान हो गए, 20-25 साल बाद किधर आ गया है। पर जदों मैं उन्हां दे नाल भलाई शुरू की ना, जदों किसी दे घर मैं लैटरीन टॉयलेट यानी बनवा के दिती थी, वो मैनू दुआवां देन लग पिया। किसी दा छत मैं सही मुरम्मत करा के दिता, मैनू दुआवां देन लग पिया। मैं किसी दी जमीन दे मामलात सन वो दुरुस्त कराए, वो मैनू दुआवां देन लग पिया। हजरत दवाइयां कम नहीं सन कर रही, पर गरीबां दियां दुआवां बड़ियां कम करना शुरू कर दिता। और जो जो मैं उन्हां विच हसन खेडन लग पिया, मेरे वजूद दे दर्द मुकन लग पे, मेरियां परेशानियां मुकन लग पईयां। मैं 20 दिन उत्थे गुजारे, मैनू लगदा सी मैनू कोई बीमारी है ही नहीं, मैनू कोई परेशानी है ही नहीं। मैं 25 दिन गुजार के मैं वापस फैसलाबाद गया, मैं उन्हां डॉक्टरां नूं जाके चेक कराया। डॉक्टर मैनू वेखण हैरान होन, वो कहन तेरियां पहलियां रिपोर्टां और ने, हुण
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ, ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? तो मैं किया पुत्र मैं नहीं कीता, ये नबी दे फरमान ने सब कुछ कीता है। नबी फरमाते ने जो रिश्तेदारा नाल चंगा हो जाए रब दी उम्र ही उंज लंबी फरमा देंदा है। लेकिन असी नबी दी मनण वास्ते नहीं तैयार। असी मीलाद दा लंगर पकाईए ना, चाहिदा ते सी कि पहली प्लेट उस रिश्तेदार दे घर जाए जेड़ा नाराज होवे। हुजूर कोलों पुछया गया सी या रसूल अल्लाह सदका देना किसनू ज्यादा अफजल है? तो फरमाया जेड़ा गरीब रिश्तेदार है। तो या रसूल अल्लाह इस तो भी अफजल है? फरमाया उस रिश्तेदार नू जेड़ा नाराज होवे फिर भी उहदे घर भेज दे। और असी ते सलाम देना गवारा नहीं करते। और फिर जदों आखिरी वक्त आ जाता है ना, बंदा मर जाता है, तो फिर जाके ना ते चारपाई दे सिराने बह के हिला हिला के कहने आ बोलदा क्यों नहीं? खुद सोच, जदों बोलदा सी तू बुलाया कदों सी? मेरे भाइयों इस वक्त सब तो बड़ा मीलाद ये है, नाराजगियां मुकाओ। हुजूर फरमांदे ने मैं इस जुमले ते गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं। हुजूर फरमांदे ने जो सुलह विच पहल करेगा उदी जन्नत दी जमानत मैं मुहम्मद दे रहे हैं। आओ मैं ये जुमला हदीस की रोशनी विच कह रहे हैं, जेड़ा झगड़े मुकाएगा वो सीधा जन्नत जाएगा। जन्नत 4 कदमां ते तुहाडा इंतजार कर रही है। बस एक बारी मुहम्मद करीम दी मन लवो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे